हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक? ओके। चलो, लास्ट टाइम हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर दिया। वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस related with the length, related with the volume, related with the shape of the body, and three types of strain also related with the length as a volume and according to the change in shape of the body. फिर also we have discussed about their unit which is most important. If we consider the stress, any type of stress, the formula is sigma is equal to F upon A and its unit is Newton per meter square. Either corresponding to length, मतलब longitudinal stress, compressive stress, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर एज ए शियरिंग स्ट्रेस, कोई भी हो, फॉर्मूला एक ही है फॉर द स्ट्रेस. नाउ इफ वी कंसीडर अबाउट द स्ट्रेन, then corresponding to length it is sigma L is equal to delta L upon L. Corresponding to volume, that is delta V upon V, and corresponding to change in the shape, shearing strain as a tan theta, या you can say epsilon theta, and that is delta x upon h. You can say L otherwise h, जो भी लेंथ या हाइट करो उसके हिसाब से तुम लिख सकते हो. लेकिन कोई भी टाइप का स्ट्रेन है which is unitless, dimensionless, and also we have discussed about the Hooke's law also. In Hooke's law, whenever the force, मतलब for smaller amount of force, so for smaller force always stress is directly proportional to the strain. इसका मतलब जब फोर्स इतना ज्यादा नहीं है तब the stress is always proportional to the strain. That's why the stress upon strain is always constant, and that constant name given as a modulus. It is called modulus. Then according to the 3 types of strain and strain, we have 3 types of modulus also. Corresponding to length, modulus अलग है. Corresponding to volume अलग है modulus. Corresponding to change in the shape, the modulus का नाम कुछ अलग है. लेकिन commonly the ratio of stress and strain is called modulus. अब strain unitless है, इसीलिए whatever the unit of stress is equal to the unit of modulus, और unit of modulus भी हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ. अब इसे में अगर हम आगे करें तो हमें ये मॉड्यूलस तीनों अलग अलग करें उससे पहले हमें एक रिलेशन डिराइव करना है कि रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. This question is most important, the relation between stress and strain. तो ये जो रिलेशन है वो हम थोड़ा बहुत ऐसे ग्राफ से देखेंगे कि when we plot the graph of stress versus strain for as a डक्टाइल मटेरियल. सबसे पहले हम डक्टाइल मटेरियल के लिए लेंगे. अब डक्टाइल मटेरियल है क्या वो हम डिस्कशन उसके अंदर ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होगा
कि derive the relation between stress and strain for ductile material। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक प्लास्टिक, कि तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा प्लास्टिक है, उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगा, मतलब स्ट्रेस लगा हो उसमें, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत फोर्स लगाने से उसकी लेंथ में चेंज आएगा, मतलब the strain is arise in that, and whenever the lower amount of force, मतलब स्ट्रेस बहुत कम है, at that time stress and strain are proportional to each other। तब यहां से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उसका ग्राफ का नेचर पहले तो कुछ ऐसा है, लेकिन in the graph from O to A, if we observe the graph O to A, it is straight line. In straight line means under the smaller amount of force applied on the body, the stress is proportional to the strain. Then graph OA, the stress is proportional to strain, and in between अगर तुम force remove करो, then again object come back to its original shape and size। तो इट्स कम बैक मतलब ये वापस आ जाएगा O पर। अगर स्ट्रेस जीरो कर दोगे, फोर्स जीरो करोगे, तो वापस स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इसका मतलब O से A जो ग्राफ अगर हम देखें तो उसमें हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस is proportional to strain, and when we remove the force, तब body regain its original shape and size। अब थोड़ा और फोर्स बढ़ा दो, मतलब तुम्हें कंटिन्यूअसली फोर्स थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है और बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे रिलीज भी करते जाना है। तो रिलीज करोगे अंडर द O to A, अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब जितना फोर्स लगेगा उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा, तो अब ये जो A पर अगर हम बोलते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन होती है, इसलिए A पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। A पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कि वहां पर प्रोपोर्शनलिटी फॉलो होती है। ओके, फिर A के बाद अगर तुम देखो कि अप टू पॉइंट B, कि जहां पर ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेन के साथ ऐसे थोड़ा बेंड हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो कंपेयर टू स्ट्रेस स्ट्रेन ज्यादा होगा, मतलब इन A to B द प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट मेंटेन। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन नहीं हो रही है, कंपेयर टू स्ट्रेस स्ट्रेन ज्यादा होगा, मतलब इसकी लेंथ में थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा। But when you are removing the force between A to B, again the object regain its original shape and size। मतलब A से B ग्राफ है जिसमें प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन नहीं हो रही, मतलब इसमें बोलेंगे कि स्ट्रेन is more compared to the stress, proportionality is not maintained। But from B, if you remove the force, again the object regain its original shape and size। That's why the B point it's called yield point। इसको yield point भी हम बोल सकते हैं। ओके, और उसके बाद अगर तुम और थोड़ा बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो, तो सपोज C, तो आफ्टर द यील्ड पॉइंट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर फोर्स एंड देन आफ्टर व्हेन यू आर रिलीजिंग द फोर्स, द ऑब्जेक्ट बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, उसमें परमानेंटली डिफेक्ट रह जाते। मतलब जो प्लास्टिक है उसमें तुम थोड़ा फोर्स लगा दो तो लेंथ इंक्रीज होगी, और सर्टेन अमाउंट से थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसमें लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फिर अगर तुम रिमूव करो फोर्स तो वो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आता, उसमें परमानेंट डिफेक्ट, इसको हम परमानेंट डिफेक्ट बोल सकते हैं। तो उसको हम फिजिक्स के वर्ड में बोलेंगे
द परमानेंट स्ट्रेन इज प्रोड्यूस, कि जिसमें लेंथ इंक्रीज ही रहेगी, फिर अगर तुम फोर्स रिमूव करो तो वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आता। देन B2C में हम बोल सकते हैं कि द स्ट्रेन इज वेरी मच मोर, और ये कभी उसके बाद वो ऐसे वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आता, तो उसको परमानेंट सेट बोल सकते हैं। मतलब C के बाद अगर B टू C के बीच में अगर तुम फोर्स रिमूव करोगे तो स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, लेकिन बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, उसके अंदर परमानेंट डिफेक्ट रह जाएगा, जिसको बोल सकते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट डिफेक्ट रह जाएगी, उसके बाद बॉडी कभी भी अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। और इसके बाद अगर तुम और थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि वो जो प्लास्टिक है वो थोड़ा लंबा 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 होता जाएगा। तो ऐसे सी से डी से ई पॉइंट, तो ऐसे जो भी लेंथ इंक्रीज हो रही है ऐसे प्लास्टिक की, उसको तुम ऐसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल सकते हो। इट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एंड एट सर्टेन पोजीशन के बाद वो जो प्लास्टिक है मटेरियल वो टूट जाएगा, तो वो जहां पर टूटेगा सपोज ई पॉइंट पर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। That's why it is called fracture point। तो अब जिस ऑब्जेक्ट में ये जो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलेंगे, तो जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है उस मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। It is called ductile material। तो हमने बोला था कि there is a relation between stress and strain for ductile material, the material for which the plastic deformation is more। plastic deformation is more का मतलब कि तुम फोर्स लगाते जाओ और वो ज्यादा ऐसे टूटे बिना उसको हम खींच सकते हैं बहुत ज्यादा, और उसके बाद लास्ट में टूटे, मतलब ऐसे जो भी ऐसा स्ट्रेन है वो बहुत सारा उसमें प्रोड्यूस हो सकता है, उसकी लेंथ के हिसाब से हम उसको खींच सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट नहीं टूटेगा, पहले उसको खींच सकते हैं और उसके बाद टूटे। तो जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा है उस मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। और बहुत सारे मटेरियल ऐसे थोड़ा खींचने के बाद डायरेक्ट टूट जाते हैं, मतलब डी के आसपास ऐसे बहुत ना खींचे उससे पहले टूट जाते, उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। डी के बाद अगर वो टूटे तो उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो इसी के अंदर हमें दो ऐसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। हाँ, तो ये हुआ द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वंस अगेन ये जो रिलेशन करना है फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर देना है, उन सभी ग्राफ को एक्सप्लेन भी करना है। तो बोलेंगे फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन व्हिच इज शोन अंडर द ग्राफ OA। तो फॉर इन ग्राफ OA there is a stress is proportional to strain, that's why point A it's called limit of proportionality। then after proportionality is not maintained when you are increasing your deformation force, then compared to stress, strain is more, which is given by the graph AB, and in between the graph AB whenever you are removing the deformation force, object regain its original shape and size, that's why B point is called yield point। and if you further increase the deformation force, then after B to C there is a permanent
strain is arise in the body, permanent defect produced in the body, and then after when you are removing the force, object does not regain its original shape and size. There is a permanent defect, permanent set produced in an object. Then after, when you are increasing the deformation force and the object, the length of the object increases, this is called plastic deformation, which is shown by the graph CDE. And at last, for the force at which the object is break, it's called fracture point. And the material for which plastic deformation is large, it's called ductile material. And whenever the object is break at point D soon, it's called brittle material. तो ऐसे हम ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे भी मटेरियल है बहुत सारे कि जिसको हम ऐसे बहुत सारा खींचे तो उसकी लेंथ के कंपेयर में बहुत ऐसे गुना हम खींच सकते हैं मल्टीपल्स में, और ऐसे फोर्स रिमूव करेंगे तो वापस अपने से वो रिगेन करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा होगा? हाँ, रबर को देखो, उसकी जितनी साइज है उससे तुम अनेक ऐसे बहुत सारा तुम खींच सकते हो उसको, और फोर्स रिमूव करोगे वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो उस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं इलास्टोमर्स। मतलब अब हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रिलेशन करना है, लेकिन डक्टाइल के लिए नहीं। डक्टाइल में क्या होगा कि तुम थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज करोगे, उसके बाद वो कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ऐसे शेप में नहीं आता। लेकिन ऐसे इलास्टोमर्स मटेरियल ऐसे है लाइक रबर, कि उसमें तुम फोर्स लगाओगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, बहुत ऐसे फोर्स लगाओगे तो उसकी लेंथ ऐसे बहुत इंक्रीज होगी, और उसके बाद फोर्स रिमूव करोगे, अगेन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, है ना। तो इसमें ऐसा होगा कि कोई भी ऐसे पोजीशन पर द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नॉट इन प्रपोर्शन। मतलब जो हमने हुक्स लॉ बोला है, हुक्स लॉ ऐसे बहुत सारे मटेरियल के लिए फॉलो होता है, बहुत सारे मटेरियल्स में फॉलो होता भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हुक्स लॉ इज यूनिवर्सल। बहुत इलास्टोमर्स रबर टाइप मटेरियल है कि जिसमें ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है उसका। तो कोई भी पॉइंट पर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट इन प्रपोर्शन। इलास्टोमर में कभी भी हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल द हुक्स लॉ इज नॉट फॉलो। तो इलास्टोमर्स मतलब रबर, है ना। और दूसरा एग्जांपल है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलास्टोमर लाइक मटीरियल। उसके अगर हम एग्जांपल दे तो जैसे हमारा हार्ट पंपिंग करता है, तो ड्यूरिंग द पंपिंग जैसे पंप करेगा तो बाय फोर्स जो ब्लड है वो वेन्स के अंदर एंटर होगा, है ना। तो उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा वेन्स का, और फिर ब्लड जैसे चला गया वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और वो अगर हमें पंपिंग अगर फील करना है तो ऐसे हम हाथ रखते हैं, है ना, जैसे डॉक्टर्स करते हैं हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम फील कर सकते हैं। और उसमें भी हम उसको हमारी हार्ट बीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हार्ट बीट कैलकुलेट ना करनी है तो उसमें फील करो कि ऐसे जैसे ब्लड आता है ऐसे उस टाइम पर पंप होगा, हार्ट का पंपिंग होगा, तो उस टाइम पर वेन्स थोड़ी ऐसे ब्रॉड होती है, फिर ब्लड चला गया वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम इलास्टोमर्स, कि उसकी जो भी डायमीटर है उससे थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हो और वापस अपनी पोजीशन पर भी आ जाती है वेन्स। इट इज कॉल्ड इलास्टोमर्स, कि जिसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नॉट मेंटेन एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, फिर अब ये जो भी इलास्टोमर्स है उसका यूज कहाँ पर है?
तो जहां पर वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब करने के लिए, मतलब ऐसे कोई भी मशीनरी है और बिल्डिंग में ऐसे कोई मशीनरी बड़ी सी लगा दी है, तो उसके जो बेस है वहां पर वाइब्रेशन आएगा। अब वाइब्रेशन आएगा तो पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन आ सकता है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, उसके जो बेस है उसके नीचे ऐसे रबर, और प्योर फॉर्म ऑफ रबर इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर, ऐसे रबर, ऐसे प्योर फॉर्म ऑफ वल्केनाइज्ड रबर उसके बेस के नीचे रख दें हम, ऐसे थोड़ा थिक लेयर करके। तो क्या होगा कि जैसे उसका वाइब्रेशन आएगा वो रबर कंप्रेस होगा और वापस ऐसे वाइब्रेशन चला जाएगा तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो जो नीचे जो फ्लोर है उसके ऊपर वाइब्रेशन कम हो सकता है। ओके, तो इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम रबर को खींचें तो खींचने में जो वर्क होगा हमारा और उसको रिलीज करेगा, तो वो जो रबर है वो खुद वर्क करेगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स अराइज। तो उन दोनों का वर्क जो है वो डिफरेंट होगा, मतलब हमारा वर्क खींचने का वर्क ज्यादा होगा, रिगेन जो है उसमें वर्क थोड़ा कम है। तो फॉर इलास्टोमर्स मटेरियल the work done to deform body is greater than work done by the body to regain original शेप एंड साइज। जो हमारा वर्क है वो ज्यादा होगा और जो रिगेन का वर्क है, जो कि वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द बॉडी, वो कम है। तो इसमें वर्क का डिफरेंस आएगा एंड डिफरेंस ऑफ द वर्क इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो वाइब्रेशन है उसमें पहले जो उसमें जो रबर है वो कंप्रेस होगा, ओके, तो उसमें वर्क थोड़ा ज्यादा है। जैसे वाइब्रेशन चला गया रबर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो वो वर्क डन कम है। तो जो भी वर्क का डिफरेंस हुआ वो एज ए हीट एनर्जी में लॉस हो जाता है। द सेम थिंग अप्लाई इन अवर बॉडी। जैसे वो ब्लड ऐसे पंप करेगा बाय फोर्स, वो वेन्स में ऐसे एंटर करेगा, तो जो वेन्स है वो थोड़ी ऐसे ब्रॉड होगी, तो उसमें जो वर्क डन है वो ज्यादा होगा। और अब ब्लड चला गया उसके बाद वो ओरिजिनल शेप में आएगा, उसका वर्क डन थोड़ा कम होगा। देन द डिफरेंस ऑफ द वर्क इज डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और इसीलिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। कभी ऐसा फील होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर कम है, हाँ यहाँ टच करेंगे तो जो ज़्यादा टेम्परेचर लगा, यहाँ टच करेंगे तो कम हुआ, ऐसा होता है कभी नहीं। पूरी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम होता है ड्यू टू द इलास्टोमर्स मटेरियल। जो वेन्स वो इलास्टोमर्स से बनी। डिफरेंस ऑफ द वर्क जो आया इट इज डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। अगर कोई भी पर्सन की डेथ हो जाए, उसकी बॉडी को टच करो तो कैसी लगेगी? हाँ, थोड़ी ठंडी लगेगी ना। हमारे कंपेयर में उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी ऐसे कूल होगी। क्यों? उसमें तो वो प्रोसेस ही बंद हो गई है, प्रोसेस बंद हो गई, हीट एनर्जी रिलीज होना बंद हो गया, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे 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 कम हो जाता है। हमारे कंपेयर में उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसलिए हमें उसको हमें उस जो बॉडी है वो थोड़ी कूल लगेगी, क्योंकि प्रोसेस ही बंद हो गई। तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है ड्यू टू द इलास्टोमर्स मटेरियल प्रेजेंट इन अवर बॉडी एज ए वेन्स। वेन्स हमारे ऐसे इलास्टोमर्स मटेरियल से बनी है, जिसमें ये ग्राफ मेंटेन नहीं होगा, और जो वर्क का डिफरेंस है दैट इज डिसिपेटेड एज ए हीट एनर्जी। और जो रेगुलर लाइफ में जो रबर यूज होता है इट्स यूज एज ए वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं,
कि कहीं पर भी ऐसे इलेक्ट्रिक का काम करना है तो जो पर्सन होता है वो ऐसे रबर शू पहन के आता है, तो शॉक एब्जॉर्बर में भी वो यूज होता है, तो उसकी यूजेस अलग अलग है। अब दो अलग अलग क्वेश्चंस है फॉर द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड फॉर इलास्टोमर। जो क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है एज ए थियरी, जो पूछे वो तुम्हें पूरा उसको एक्सप्लेन विथ ग्राफ करना है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिराइव द 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस। जैसे हमारे 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है तो उसका रेशियो मॉड्यूलस है, तो हमें 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ अलग, रिलेटेड विद द वॉल्यूम अलग, रिलेटेड विद द शेप अलग। तो हमें 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस को हम नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे।